कौन आवाज क्रिएट कर रहा है पता नहीं चल रहा। आते समय आवाज करेगा। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, ओम्स लॉ से जो फार्मूला लाए थे हम लोग, क्या लाए थे? V इक्वल टू R इंटू आई लाए थे। ठीक है, ये ध्यान में था। उसके बाद R की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था, V डिवाइडेड बाई I। ठीक है, अब देखो होता क्या था, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, हाउ टू वेरीफाई ओम्स लॉ। हाँ, हाउ टू वेरीफाई ओम्स लॉ। टू वेरीफाई ओम्स लॉ we should take care of the observation with the help of rheostat। जो rheostat हम लोग का था RH, जो RH के बारे में हमने बताया था, इस तरह का सिंबल दिखाया था आपको, हाँ, लास्ट क्लास का, ये RH। तो by changing or sliding the jockey of the rheostat so that ammeter gives certain value of the current। करंट का वैल्यू मान लो नोट किया हम लोगों ने फर्स्ट बार। एट द सेम टाइम वी विल मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ द voltmeter, it gives the value V1। So when you slide the jockey, you observe the ammeter and voltmeter, note down the value। After noting down the value, you apply the formula for resistance। So you find the value of R by taking the ratio of V1 and I1। And similarly, when you are changing the value by sliding more and more value of the jockey from minimum to maximum, as you are sliding means you are changing the value of resistance, so that for that value of resistance given by the rheostat, the amount of current is noted down once again. If you are noting the current I2 and at the same time you are noting the potential difference V2, you find the value for the R, but the value is V2 by I2 because one component of resistor is used across the parallel with the voltmeter. Voltmeter is always connected in parallel with the resistor, which is unknown resistor, and we are changing the value of resistance with the help of rheostat and noting down V1 and I1, V2 and I2, and finding the ratio. And in each value, the ratio give the same value. For all kind of change value of V1 and I1, we are getting the resistance value same. So V3 and I3, number of observation can be made, but V by I ratio will give the constant value R. So in Ohm's law verification, it is the constant value of resistance which is decided with the help of changing the value of resistance with the help of rheostat and finding the different values of current and potential difference and making the ratio of all observation, we get the same value of R, which are very close to the constant value. So Ohm's law verification is done with the help of the Ohm's law circuit diagram by the three components used in the circuit. One is voltmeter, other is ammeter, and the master slider rheostat. Rheostat which causes to change the value of the current and voltage. So Ohm's law is verified with the help of the circuit diagram and the nature of the value. You can think of as current along the x-axis and potential difference along the y-axis. If no current is supplied, your value is at origin. If your current value is I1, then you choose the number of division. After 10 division, you decide I2, and more 10 division, you decide I3. Similarly, you divide the y-axis, right for first observation of potential difference V1, V2, and V3. You find the point by making dotted lines. You have got 1 point. Similarly, for the given value of potential difference 2, where is the current? Current is just along x-axis. You have got another point. So
This is the method to draw the graph. We are drawing the variation of potential difference and current graph. VI graph will decide whether the Ohm's law is satisfied or not. This is the simplest method. If you are locating the point, you say point A, point B, and point C. Join the line from the origin. If you are joining the just straight line must be drawn. With the help of scale, you will draw. The line must be straight line, and the equation of straight line on the basis of Ohm's law is based on V I into R. देखो, how to draw the graph and how to draw the graph, how to verify the Ohm's law. VI graph, if it is VI graph, if gives a straight line, then Ohm's law is satisfied. Okay. Is it clear about Ohm's law verification? Yes, sir. Ohm's law verification is done by the circuit diagram already drawn in the last class, and how to find the potential difference and current with the help of voltmeter and ammeter with the help of the rheostat. It is the rheostat which causes to change all kind of variation in the potential difference and current. If you are changing sliding the jockey of the rheostat, you are changing the value of the resistance, and you are observing the different value of potential difference across the given resistor. And ammeter connected in series also read that amount of current which is allowed by the rheostat. तो जो रियोस्टेट अलाउ करेगा करंट को वही अमाउंट नोट डाउन किया जाता है, और अलग अलग बार बार I1 I2 I3 सोन अगर मान लो हमारे पास टाइम ज्यादा है और हम लोग वहाँ अच्छे टाइम दे करके अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करते चल जाएंगे. कोई 5 बार ऑब्जर्वेशन करेंगे, कोई 10 टाइम्स ऑब्जर्वेशन करेंगे, बट इन ईच ऑब्जर्वेशन वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ द V and I and we find the value of the R. If that value of the R, the ratio of the two V and I, which are very close to each other, that give the constant value of resistance of the conductor. तो ये ओम्स लॉ का सर सर्किट था. हाँ बताओ सर. रियोस्टेट को सर्किट में कहाँ पे कनेक्ट करेंगे सर? बैटरी के सर पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में? वो आप अगर बैटरी की के बाद लगाते हो तो ज्यादा अच्छा है. हाँ सर की के बाद मतलब सर उसके लेफ्ट या राइट में सर, जो आपके सर्किट डायग्राम बनाए थे? हाँ मेरा सर्किट डायग्राम में तुम देख रहे होगे की के बाद लगाए ना. मेरा सर्किट डायग्राम देखे थे, क्या था, लेफ्ट था कि राइट था? सर की के राइट में था. राइट में था. तो ज्यादा आसान है ना, एक बार स्विच ऑफ कर देंगे तो सब डिस्कनेक्ट हो जाएगा. और रियोस्टेट का जो अदर इंड है वो तो वोल्टमीटर का बी पॉइंट पर जाएगा जहां पर रेसिस्टेंस रहता है. तो द वोल्टमीटर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेसिस्टर, द लेफ्ट इंड इज ए एंड राइट इंड इज बी. A point is connected or maintained with the plus of the battery, and B point is connected to the negative of the battery through the rheostat, through the key. So it is the right side current. Hello scientific people, how are you? So today I'm going to talk about a very interesting electrical device that is generally used till grade 12, and this is called rheostat. Rheostat itself is a very interesting instrument, and this is also sometimes called as a variable resistor. So let's understand the principle and let us understand the construction as well. Rheostat basically is a variable resistor and it is used to vary the current in the circuit. So it is also called a current controlling device. You can see that as per the international standards, this is the symbol of the rheostat. So you might have heard the name of this English scientist if you are in grade 12. Wheatstone Bridge is a very famous experiment that you perform in grade 12. And let us now look at the construction. It has got 3 terminals, people. So this is terminal number 1, terminal number 2, terminal number 3. So these two are fixed terminals, whereas this is called as the moving terminal. This is called sliding contact. It can move like this. It is also sometimes called as a wiper. In some of the ICSE textbook, they have mentioned this as jockey. You can see that these wires are wounded over a ceramic material. So this is a ceramic material on which the wires are continuously wound like this. So this is the construction, guys, and this slider actually moves over a metal rod. Right? Now let us try to understand its application in electrical circuits. So here is the figure that represents the rheostat.
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर अभी भी नहीं आ रहा। अब आ रही है? अब Yes, आवाज sir. आ रही है? हाँ चलो यस सर। अच्छा यस ठीक सर। ठीक है। रेसिस्टेंस जो हम लोग अभी ओम्स लॉ से लाए थे कांस्टेंट का, तो रेसिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे, स्मॉल आर भी लिखते हैं राइटर लोग। और ये है क्या वास्तव में? ऑपोजिशन है। इसको क्या बोला जाता है? ऑपोजिशन ऑफर। ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर। कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, समझे? वो आवाज निकाल, उसके यहाँ कुछ काम हो रहा है। Opposition offered to flow of current in a conductor is called resistance. ये आपको ध्यान में रखना है, रेसिस्टेंस का फिजिकल मीनिंग है ये। दूसरा बात, इसका एसआई यूनिट क्या हम लोग लिखते हैं? एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, OH। और सिंबल क्या बताया था मैंने? ये ओम, ये लेटर। ठीक है, ये बहुत जगह एंगल के रूप में भी यूज होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में इसको रेसिस्टेंस का मीनिंग रखेंगे। हाँ, अदर जगह में इसका दूसरा सिंबल होता है। एक टर्म्स आता है, ध्यान में रखोगे, फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड? तो फैक्टर्स में नंबर 1 पे कौन जाएगा? ये जो भी रेसिस्टेंस है, यस, ये लेंथ पर होगा। मैं एक Resistance is directly proportional to the length, cross sectional area, temperature, nature of its material. देखो यहाँ पर मैंने एक वायर को थोड़ा मोटा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और इस वायर को हमने क्या किया, इसकी लेंथ को मैंने L सोचा, आपको भी ये लेंथ सोचना है। और यहाँ पर जो ऊपर में ये सर्कल जैसा है ना, सर्कल जैसा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बोल रहे हैं यहाँ पर का, ये ठीक है। इसको एरिया को मैंने A बोला, A फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो नंबर 1 फैक्टर क्या हो गया? आर डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द लेंथ। हाँ, मोर द लॉन्गर वायर, मोर इज द रेसिस्टेंस ऑफ आर। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये लैंग्वेज में जाएगा। दूसरा फैक्टर हो जाएगा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ये आपको सेकंड फैक्टर जाएगा। ठीक है, ये 2 फैक्टर ज्यादा जरूरी है। फैक्टर और भी हैं, लेकिन वो 10 में नहीं जानने। ठीक है, फैक्टर और भी हैं, लेकिन 10 में नहीं जानने हैं। ये दोनों को कंबाइन जब हम करेंगे तो आर का रिलेशन जो है लेंथ अपॉन एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंथ अपॉन एरिया। तो लेंथ अपॉन एरिया जैसे ही होगा तो आप यहाँ देखें कि R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। ये फॉर्मूला पर ध्यान देंगे लास्ट। तो रेसिस्टेंस कैसे ये रिलेटेड है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बोलेगा कोई कि राइट द फॉर्मूला फॉर रेसिस्टेंस। तो in terms of length and in terms of the cross section area we have the formula R is equal to rho into L upon A। तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि रेसिस्टेंस ओम्स लॉ से तो होता ही है V by I, बट दिस रेसिस्टेंस इज रिलेटेड विद द L and A। तो ये ध्यान में रखना है। वेयर आप रो का मीनिंग बता में, रो क्या है जी?
कोई भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ लिया गया, हाँ प्रोपोर्शनलिटी लिया गया, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसका नाम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टिविटी। और इसका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कुछ टीचर राइटर लोग लिखता है, जो पुराना जमाना में यूज होता था। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज द सेम एज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। तो रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, हाँ मटेरियल ऑफ द वायर या ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, फुल स्टॉप करो। तो यहाँ पर एक न्यू टर्म्स आ गया, R is equal to rho times L upon E. This is the formula of resistance, and this is complete different formula which are given by the Ohm's law. V is equal to I into R, so R is the ratio of the V and I. That is another thing that is given according to the Ohm's law. But now the value of the resistance of any conductor is always related with the resistivity times L upon A. तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम लोग रेसिस्टेंस को लिखते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का ध्यान रखते हैं, इसमें जो भी रेसिस्टेंस होगा पूरा लंबाई के अनुसार रेसिस्टेंस R होगा, हाँ, लेकिन लेंथ इसका अपना A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो इससे हम लोग जो भी लाएंगे फार्मूला को उसको देखेंगे। तुम देखो, जहां तक सवाल है रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस, सर आवाज रुक गया। आवाज रुका हुआ है, सर आ गया। उतार और हिलता रहता है, ध्यान में रखोगे। देखो, अगर हम चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, R इंटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ करेंगे। देखो यहाँ पर फार्मूला नंबर 4 मैंने मान लिया। रेसिस्टिविटी का जो फार्मूला आ रहा है ये ध्यान में रखना है, रो का वैल्यू R टाइम्स एरिया बाय L होता है। तो अब इसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो ओम हो जाएगा रेसिस्टेंस का यूनिट, एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। तो क्या वैल्यू देगा हमारे पास, ओम मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ, यस एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में काफी अंतर है। Resistance is the only opposition offered to flow of current in a conductor, but resistivity is the conductor whose cross section area is equal to 1 meter square. तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, how to define the resistivity. तो ध्यान देना ये सब बातें। If you are keeping length of the wire 1 meter and cross section area of the wire is taken 1 meter square, then how to find the resistivity? तो जो resistivity होगा, resistivity means rho of the conductor. How to write? So you are writing R resistance and you are keeping area as 1 and length 1. You are getting the resistance offered per unit length of the conductor whose cross section area. So resistivity is nothing but it is the resistance offered by the conductor whose length is 1 meter and whose cross section area is 1 meter square. So if any conductor having unit length and opposition offered to flow of current by the unit cross section area of the wire, then in such condition the resistance offered by unit length of wire by unit cross section area is called resistivity of the material. तो जब कोई मटेरियल का रेसिस्टिविटी की बात करते हैं हम लोग तो रो का मीनिंग, हाँ, ओम मीटर एसआई यूनिट में रखते हैं और यहाँ पर रेसिस्टिविटी का एसआई डिफिनीशन लेते हैं। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा काम की है, छोटी छोटी बातें बारीकी से देखने और समझने की है। खाली ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R से काम नहीं चलेगा। हाँ, यू हैव टू गो थ्रू द each and every points which are given in the conductor. तो कंडक्टर का बारे में हम लोग यहाँ देखें तो ये ध्यान में रखने का था। तो आप ओम्स लॉ तो पढ़े, ठीक है, ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम लास्ट क्लास का था, ग्राफ का नेचर मैंने रिपीट किया। ग्राफ का भी नेचर में है, ध्यान में रखना है कि इफ यू आर कीपिंग द करंट अलोंग द एक्स एक्सिस, हाँ, देन यू कैन इजीली फाइंड द ग्राफ। हाँ, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिव द रेजिस्टेंस, ये भी यहाँ पर ध्यान देने वाला बात था।
तो ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और टाइम लेंगे। हाँ, जहाँ तक फैक्टर का सवाल है, फैक्टर में कुछ बच्चा बोला था कि टेम्परेचर भी है, लेकिन टेम्परेचर फैक्टर में टेम्परेचर का काम है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी पर प्रभाव पड़ेगा, रेसिस्टेंस पर भी पड़ेगा और रेसिस्टिविटी भी पड़ेगा, लेकिन 10 क्लास में नहीं पढ़ना है। रेसिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, लेकिन रेसिस्टिविटी है किसका? कंडक्टर का है कि सेमीकंडक्टर का है कि इंसुलेटर का है, उस पर निर्भर करेगा। तो उसका चर्चा थोड़ा रोका हुआ है, वो 12 स्टैंडर्ड में जाएगा बात। समझते हो बात को? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। मान लो एक हम आपके लिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, आपके पास एक छोटा सा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर भी डिसाइड किया है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आपके पास टाइम है तो। बोल रहा है ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल having length L, सर हैविंग के बाद length L and area of cross section capital A has a resistance of 10 ohm. What would be the resistance? क्वेश्चन लिखोगे बच्चों, what would be the resistance of another wire of the same material, having length L by 4 and area of cross section क्वेश्चन लिख लोगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 A। देखो ये क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है? आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि भाई सब कंप्यूटर है, मोबाइल है, किस समय डिलीट हो जाएगा, मिट जाएगा, पता नहीं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने फैक्टर पढ़ा, इस फैक्टर के अनुसार हम लोग R बराबर रो इंटू L बाई A का फॉर्मूला लेंगे, ठीक है? टाइम है ना? अभी टाइम खत्म नहीं ना हुआ है? 5 मिनट। हाँ हाँ, अभी है 10 मिनट है, तो 11:20 तक है ना? 5 मिनट है। 5 मिनट में आप बना पाओगे? देखो तो बनेगा? कॉपी पर हाथ डालो। सर 1 ओम। हाँ, उसको कॉपी पर दिखाओ, कैमरा ऑन करके कैसे बनाए हो। सर थोड़ा रफ में किए हैं। हाँ तो वही ना, रफे ना चाहिए, दिखाओ। यस सर। कौन है, कौन बच्चा है, बोलो। ऑन कर दिए सर। हाँ दिखाओ, कैमरा में दिखाओ। सर ऑन है कैमरा। कैमरा ऑन है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा रे? आर्यन राज। हाँ, तुम्हारा तो आ रहा है यहाँ पर, तुमने बनाया है। हाँ ठीक है। R इक्वल टू, हाँ कॉपी सीधा करोगे ना तो आ जाएगा, तुम आराम से देखा जा सकता है, ठीक है तुम्हारा, ठीक है। हाँ 1 ओम आ रहा है, लाया यस है? सर 1 ओम 10 से 10 कट जाता है। हाँ ठीक है।
और भी स्टूडेंट इसको कोशिश करोगे, अच्छा तो यही तरीका है देखने का। बहुत सुंदर, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने सॉल्व करके दिखाया। आर स्केल, वेरी नाइस। कोई भी स्टूडेंट अपना वर्कआउट को दिखा सकता है हमको, उस समय कैमरा ऑन करके कॉपी पर कर देगा, फोकस दिखाई पड़ रहा है। वेरी नाइस, आर्यन राज ने बनाया। बहुत अच्छा, थोड़ा ट्राई किया है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करके देखोगे, है ना? ग्यारह 20 में लास्ट है टाइम, 3 मिनट में ऑफ होगा। क्या बोला? यूट्यूब में तुम लोग ना ये कर लेगा, क्या करेगा? सुन रहे बच्चा लोग? यस सर, सब्सक्राइब कर दिए सर सर। चैनल का नाम ही नहीं पता है सर। क्या चीज? यूट्यूब में नाम? अजय क्लासेस सर, चैनल का नाम से पता है सर, अजय हाँ, क्लासेस। अजय क्लासेस आएगा ना सर उसमें। सब्सक्राइब कर दिए हैं यूट्यूब पर। हाँ, तो मेरा जो स्टूडेंट है वो क्लास में भी पढ़ेगा, यूट्यूब में भी पढ़ेगा, दोनों मटेरियल मिलेगा। समझ गए? जब स्टूडेंट इतना है तो उसका फायदा भी होना चाहिए। वेरी नाइस। चलो, होमवर्क उसने शिफ्ट करने को शेयर सर सर्च कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। सर्च में नहीं आता है। सर नहीं आता है सर, लिंक भेज दीजिए। सर ग्रुप में भेज दीजिए लिंक चैनल का। मिल जाएगा, मेरा जो व्हाट्सएप है ना, यस सर। उसका यस सर। व्हाट्सएप का बायो में जाओगे तो लिंक मिल जाएगा। ओके सर। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो जान ही रहे हो, तुम लोग के लिए कॉमन है, तो उसमें Yes, जाके sir. मेरा बायो में घुस जाना और वहां से फिर मेरा लिंक ले लेना। ठीक है? ओके सर। तो तुम लोग अपना जुटना। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट डे पढ़ाई होगा आपका। यस। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर कोई दिक्कत थैंक होगा यू तो सर।